नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मोटरसाइकिल पर जा रहे युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत। आरोपी ट्रक चालक को पुलिस ने किया काबू। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मोगा के गांधी रोड स्थित रेलवे फाटक के पास एफसीआई का अनाज ले जा रहे ट्रक के नीचे आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लगभग 1 महीने इसी जगह से 5 मीटर की दूरी पर एक ट्रक के नीचे आने से एक औरत की मौत हो गई थी, जिसके बाद ट्रकों की आवाजाही अस्थायी तौर पर यहां से रोक दी गई थी, लेकिन 21 दिन बाद फिर से ट्रकों की आवाजाही शुरू कर दी गई थी। आपको बता दें कि इस रोड से एफसीआई के ट्रक लोड होकर रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं। बस जी कहते भी राइट हैंड ਤੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਆਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪਲੇਟੀ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ PB04V 7129 ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਐਟ ਦੀ ਸਪੌਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ GRP ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਰ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਐਟ ਦੀ ਸਪੌਟ। ਸਰ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਐਸਆਈ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ GRP ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਰਦਾ FCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ 36-37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ। ਘਰੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਰਿਡ ਆ ਜੀ, 2-4 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਲਾਹ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਅੱਧੇ घंटे ताईं। सिंघू बॉर्डर के लिए ट्रैक्टर मार्च लेकर निकले अभय चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने नेता अभय सिंह चौटाला शंभू टोल प्लाजा सिंधु बॉर्डर के लिए ट्रैक्टर मार्च लेकर निकले। अभय सिंह चौटाला इस दौरान शंभू टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने में भी शामिल हुए। अभय चौटाला ने अपने इस्तीफे के मुद्दे पर बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा के लिए कह दिया कि यह कच्छाधारी लोग बहुत बदमाश है। किसानों की तरफ से एक डिमांड है कि तीनों काले कानून रद्द करके MSP की गारंटी दो और नए सिरे से किसान के जो नुमाइंदे उनके साथ बैठक करके नए कानून बनाओ, जिससे किसान को लाभ हो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, उसकी आय से 50% उसको ज़्यादा दो। अगर इन बातों का सरकार सीरियसली लेती तो पहली ही बैठक में फैसला हो जाना था। जानबूझ करके इसको लिंगर आउट किया जा रहा है, इसको लटकाया जा रहा है। 26 जनवरी तक कैसे इस चीज़ को टाला जाए, कैसे लोगों के गुस्से को कम किया जाए, इसके लिए बैठक का दौर इन्होंने शुरू कर रखा है। ये सब
फालतू चीज़ें हैं। आप सबसे पहले विधायक बातचीत हुई है उसके अंदर जो केंद्रीय कृषि मंत्री उन्होंने कहा है कि हर संशोधन और हम उस देश के मालिक हैं। आज किसान की वजह से ही ये देश जो है आत्मनिर्भर है। अगर उस अन्नदाता को आप दिल्ली में नहीं जाने दोगे तो फिर ये मान करके चलो कि आप उस अन्नदाता की अनदेखी नहीं कर रहे, आप उसको दबाने और कुचलने का काम कर रहे हो। जिसने उनको उस गद्दी पे बैठाया है आज आप उसकी परीक्षा ले रहे हो। किसान कभी परीक्षा में फेल नहीं हुआ, किसान हमेशा अपनी परीक्षा को पास करता है। हम अपने खेत में जब बीज डाल के आते हैं 6 महीने अपने बच्चों से भी ज़्यादा उसकी देखभाल करते हैं और 6 महीने में जब वो पक करके तैयार हुई फसल पे ओलावृष्टि हो जाती है तो फिर हम विचलित नहीं होते, फिर नई फसल की तैयारी करते हैं। तो किसान की परीक्षा शायद मुझे को पता नहीं साल में 2 बार परमात्मा लेता है और उस परमात्मा की परीक्षा से भी किसान विचलित नहीं है तो मोदी की परीक्षा से तो विचलित होने का मतलब ही नहीं। 100% किसान जीतेगा। मोदी जी को अपनी बात वापिस करनी दिखाई देने लग गई। क्या लगता है अभी तक मैंने स्वीकार नहीं किया? मैंने अपना रिजाइन इसी बात के लिए दिया है कि लगातार किसान के साथ केंद्र की सरकार अत्याचार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भी इस प्रदेश के भाईचारे को खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। मैंने साफ लिखा अपने इस्तीफे में कि 26 जनवरी तक अगर ये तीनों कृषि के काले कानून वापस हो जाते तो ठीक है, अगर 26 तक काले कानून वापस नहीं लिए जाते तो मेरा जो इस्तीफा मैंने लिख करके भेजा है उसको स्वीकार कर लिया जाए। ये तो कंडीशनल। मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहता जिस विधानसभा के अंदर 80% जो देश का पेट भरने वाला व्यक्ति है उसकी अनदेखी हो और उसके खिलाफ कहीं अपने बहुमत के बलबूते पे उसको अपमानित करे। मैं उस अपमान को नहीं सहता। मेरे ख्याल इस बात का ज्ञान नहीं है जो आप पूछ रहे हो कि आपने कंडीशनल दिया है। ये बात तो स्पीकर कर रहा था। आप स्पीकर की कई भी बात को कहने की बजाय आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ के आओ पहले कि हमारी रूल बुक जो है विधानसभा की उसमें क्या लिखा है। मैं मेरा इस्तीफा जो है जब लिख के दूं तो उसमें लिखूंगा जरूर ये बात कि आज किसान की अनदेखी हो रही है, आज किसान के साथ कहीं सरकार जो है तानाशाह तरीके से दबाना चाहती है। मैं इसलिए विधानसभा से इस्तीफा दे रहा हूँ कि जो विधानसभा और लोकसभा में बैठे लोग हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहता। कंडीशन नहीं है, मैं अपनी बात तो कहूँगा। आप अगर कोई काम करोगे, आप कोई मांग करोगे तो बताओगे तो सही कि आपकी मांग क्या है। ये ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये बीजेपी वाले जो है, ये कच्चे वाले, ये बहुत बदमाश हैं। ये मेरा इस इस्तीफे को जोड़ करके लोगों के अंदर वैसे ही एक आपस में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ कि 26 तक या तो काले कानून वापस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें, नहीं करेंगे तो 27 तारीख को स्वीकार करवाऊंगा जा करके खुद। सुनो अगली के बाद ये आज इस बात से इसलिए डरे हुए है, आज ये इसलिए ज़्यादा विचलित है। आपने देखा नहीं, परसों सारी सरकार दिल्ली में गई थी। इसलिए दिल्ली गई थी कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं इनके, बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो लगातार किसानों के बीच में जा कर के ये कहते रहे कि हम जो है किसान के साथ है, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सरकार से अलग हो जाएंगे। अब जब उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा लोगों का, जब लोग जा कर के उनको कहेंगे, इस असीम गोयल को कहेंगे कि तू धरने पे बैठा था जाके, तू तेरे पद से इस्तीफा दे, या अम्बाड़ा के लोग जब जाएंगे उसके घर के आगे, वो क्या कहेगा, किस लिए बैठा था धरने पे? यही कह रहा था ना कानून गलत बन रहे हैं। तो फिर उसको कहेंगे कानून गलत बन रहे हैं, तो हमारा नुमाइंदा, हमने तेरे को वोट दिया, हमने चुन करके भेजा है, तू इस्तीफा दे। तो कहाँ भागेगा वो, क्या कहेगा वो? अगर वो भागेगा तो फिर आने वाले चुनाव के अंदर लोग उसको वार्ड का मेंबर भी नहीं बनने देंगे। जगह जगह पे जाके क्या कहें कि हमारा समर्थन किसान के साथ है। अब वो कहाँ जाएंगे? लोग उनके घरों में जाएंगे, उनको भी मजबूर होना पड़ेगा। जो कांग्रेस वाले कहते हैं, भाई साहब वो कहते हैं, अरे एक मिनट भाई, जो कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उनसे पूछो ना, जब किसान के मामले में विधानसभा में बोलने का समय था तब कहाँ थे तुम? भूपेंद्र सिंह हुड्डा
के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा, उसकी अपनी पार्टी की मीटिंग के अंदर ये आरोप उसकी पार्टी के सीनियर लोगों ने लगाए हैं और कहा था कि आप तो एक कांग्रेस के बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। तो जो बीजेपी के रूप के एजेंट में पहले से काम कर रहा है उससे लोग क्या उम्मीद करेंगे। मेरा इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार इस बात से डरी हुई है कि अगर उन्होंने मेरा इस्तीफा स्वीकार किया तो बहुत सारे लोगों को इस्तीफे देने पड़ेंगे। मैं कभी भी अपनी कई भी बात से मुकरता नहीं। मेरे बारे में चाहे कोई चैनल के लोग हैं, चाहे कोई आम लोग हैं, चाहे कोई मेरे विरोधी हैं, सबकी ज़बान पे एक ही बात है कि अभय सिंह ने जो बात कही उसने कभी नुकसान और नफ़ा नहीं देखा। मेरे लिए एमएलए का पद कोई मायना नहीं रखता है। मेरे लिए किसान पहले हैं, एमएलए बाद में। मैंने चौधरी देवीलाल ने जिस पार्टी का मैं आज सदस्य हूँ वो तो एमएलए बनाने की मशीन है। हमने बहुत एमएलए बनाए, बहुत एमपी बनाए। आज जो अपने आप को चौधरी देवीलाल के बारिश बता रहे ना, वो भी हमारी देन है। वो कहीं अपने आप जीत करके नहीं आए थे, हमने ही उनको रास्ता दिखाया था। और अगली बारी लोग उन सब की तसल्ली भी करा देंगे। आज जो विधानसभा है उसमें जाओ, 75-80% लोग हमारे द्वारा राजनीति में तैयार किए हुए हैं जो आज एमएलए बने हुए हैं, और आने वाले समय में उनमें से एक भी नज़र नहीं आएगा। एक बार तो यहाँ तक कह दिया था कि कहा कि हम संशोधन के लिए, हर संशोधन के लिए तैयार हैं सरकार। संशोधन का कोई मतलब नहीं है। जब एक फैसला हो गया कि कृषि के तीनों कानून वापस लें, सरकार को इस बात का पता है भी किसान इस बात से पीछे नहीं हटेगा। ये लिंगर ऑन करने का तरीका है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैंने पहले सरसा से लेकर के टीकरी बॉर्डर का मार्च किया था, हजारों ट्रैक्टर ट्राली लेकर के गया था, 20,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ थे। आपके प्रेस ने खुद ने ये बात लिखी जगह जगह पे कि बहुत बड़ी संख्या में किसान आया। आज भी वो लोग वहीं अपनी ट्रालियों में टेंट करके जहाँ इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, वहीं वो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी देखभाल में भी लगे हुए हैं। आज भी मैं लेके जाएंगे और कृपा करके प्रसादा छक लें। यहाँ से आज चलूँगा भी छक के जाएं और यहाँ से चल करके पहले पेवा जाऊँगा, पेवा से फिर कैथल जाऊँगा, कैथल से रात को नरवाना पहुँचूँगा, नरवाना रात को नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद अगले दिन सुबह 9 बजे नरवाना से चलेंगे, उचाना जाएंगे, उचाना से फिर जाऊंगा मैं आपके जुलाना में, और जुलाना से चल करके बड़ौदा, बड़ौदा से गुहाना, रात को गुहाना में स्टे करेंगे। अगले दिन सुबह गन्नौर होते हुए आपके सिंगू बॉर्डर पे पहुंचेंगे। वहाँ करीब 12 बजे के करीब पहुंच करके अपने साथियों की ड्यूटियां लगाने का काम करूंगा। हरियाणा पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा 188 स्टोन क्रशरों को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। हरियाणा पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा जिले के सभी 188 स्टोन क्रशर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार कुछ इकाइयां एपीसीएम के मानदंडों का उल्लंघन कर चलाई जा रही थी, लेकिन विभाग ने सभी को ये नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। विभाग का कहना है कि ये एक रूटीन की प्रक्रिया है, जिसमें सबको 15 दिन का समय दिया गया कि सभी अपने क्रशर की लेटेस्ट रिपोर्ट भेजें। अगर रिपोर्ट नहीं आती तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे फोटो के साथ लेटेस्ट स्टेटस मांगा गया है। हमारी 11th में 2006 की नोटिफिकेशन है जो स्टोन क्रशर को रेगुलेट करती है, चाहे वो साइटिंग पैरामीटर है, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर है। साइटिंग पैरामीटर तो एक ऐसी चीज़ है कि वन टाइम वेरिफिकेशन की जरूरत है एट द टाइम ऑफ जब स्टोन क्रशर लगता है, तो इसकी वेरिफिकेशन तहसीलदार करता है या फॉरेस्ट से करवाते हैं। वो तो वन टाइम प्रोसेस है, वो तो चेंज होने से रही। बट उसमें नोटिफिकेशन में एक प्रोविज़न हो रहा है पोल्यूशन कंट्रोल मेजर का, जिसमें कि आपको कवर्ड शेड लगाने हैं या वो लगानी है या स्प्रिंकलर्स लगवानी है। ये ऐसे सिचुएशन, ये ऐसे एपीसीएम है जिनकी सिचुएशन चेंज होती रहती है। मान लीजिए आंधी चली तो वो टूट गए या उनकी स्टेटस में चेंज हो गया, तो उनको रेगुलर स्टोन क्रशरों को उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। तो उसी के रिगार्डिंग में हमने ये सभी को नोटिस दिए हैं कि आप अपना लेटेस्ट स्टेटस हमारे पास एपीसीएम को सबमिट करिए। और हमारी तरफ से कि नोटिस है जस्ट टू सबमिट देयर स्टेटस।
अगर वो अपना स्टेटस सबमिट करते हैं अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ्स तो हमें उसमें कोई इशू नहीं है। अगर किसी का जवाब नहीं आता तो फिर उस केस में हमें फिर साइट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।